हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Natural biogeochemical cycle. There is a most important cycle here, biogeochemical cycle. The biogeochemical cycle is a biologically, geologically, and chemical interaction. There is a three factor here is include here. Are the nothing but there is a movement and circulation of the soluble inorganic substance is a nutrients derived from a soil and atmospheric phase of inorganic substance and through there is organic phase of various biotic components. Similarly, a return, circulation and movement of organic substance take place in the favor of inorganic objects such as the soil and atmosphere. Thus, these two systems are supplementary to each other and complete the cycle. The study of biochemical cycle can be approached one two cycles, and cycling of all elements together and cycling of individual element and hydrological. Hydrological cycle is a carbon cycle, nitrogen cycle, and phosphorus cycle, oxygen cycle, and sulfur cycle, etc. Besides, this cycle is a sediment cycle, and mineral cycles are also included in this is border biochemical cycle. And this natural biochemical cycle is a function in a balanced manner, which are stabilize a biosphere and the sustain their life process on the earth. If we are disturb them, it will be lead to the various negative consequence, which is the ultimate effect of the biosphere. Let us discuss some of these cycles in the brief. This cycle is already discussed in the lesson 9 on this book, but here but discuss the related to the biosphere is environment. You can defer these cycles which is given to the detail under lesson 9. There is an important lesson here. The first year, the hydrological cycle. The hydrological cycle, there is an important here, and this cycle helps exchange of water between two air, land, sea, living plants, and the animal. Solar energy used to drive the hydrological cycle, and massive is in evaporation of water from to the ocean. Cloud formation and the rainfall give us our supply and the reserve of the fresh water. There is important here fresh water. At the sub-zero temperature, rainwater freeze into the snow and is the presence of strong wind from a hell. What is the rain is the snow is a hell is precipitated on the land and water surface. On the land surface, water seeps into the soil and is stored as a groundwater. The natural water level or the water table exists below the ground. The water table is supported by the underlying clay and the rock star. The groundwater is not be remain a static but is a move in the various direction. Its move up to through the capillaries action and reaches soil surface where it is a draw by plants roots. The next year, the nitrogen cycle. The nitrogen and it is a compound are initially for the life process in the biosphere. There is a continued exchange of the nitrogen within the ecosystem operating the nitrogen cycle. And protein produced by the plant and animal in their metabolic process are organic compound of nitrogen. The major load of nitrogen organic reduce in the soil originate from the death and decline of the plant except to the of animals. And this organic reduce in the soil are the taken by the various soil microorganisms as who break down in the soil nitrate into the nitrogen by the denitrification process. The denitrification process is the most important here, the breakdown of the soil nitrate to the nitrogen by the processing of denitrification process will the other transfer of nitrogen into the soluble nitrogen compounds. The next year, the carbon cycle. The carbon cycle is the most important here. The carbon cycle is a very important chemical cycle. The atmosphere is the minor reserve of the carbon. Hydrosphere is the major reserve which is contained to the approximately 50 times more as that of atmosphere. It is a store of bio
is a bicarbonate is a mineral deposit on the ocean floor. The latter is regulate the carbon dioxide level in their atmosphere. The cycle operates in the form of carbon dioxide exchanging among to the atmosphere, biosphere and other oceans. यदि हम चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से चक्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे ऑक्सीजन चक्र हो, कार्बन चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, चाहे फास्फोरस चक्र हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसी के अंतर्गत पहला जो है प्राकृतिक जैव भू रसायन चक्र। देखिए प्राकृतिक चक्र या जैव भू रसायन चक्र भी इसे कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र जो है जैविक भूभागीय अथवा रासायनिक अंतक्रियाएं हैं और कुछ नहीं वरना केवल घुलनशील अजैविक पदार्थ जैसे पोषकों का संचलन और परिसंचलन है। और यह घुलनशील अजैविक पदार्थों या पोषक मुद्रा और विविध जैविक घटकों की जैविक प्रवस्था द्वारा जो है अजैविक तत्वों के वायुमंडलीय अवस्था को व्युत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से जैविक तत्व जैसे जो मिट्टी हो जा गया या वायुमंडल के पक्ष में जैविक पदार्थों को परिसंचलन और संचलन की वापसी होती है। अंत ये दोनों प्रणाली एक दूसरे के पूरक है और एक चक्र को पूरा करती है। जैव रासायनिक चक्रों का अध्ययन दो आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी तत्वों को सामूहिक चक्रण या व्यक्तिगत तत्वों का चक्रण जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र आदि। इन चक्रों के अतिरिक्त जो अवसाद चक्र और खनिज चक्र को भी विस्तृत जैव भू रसायन चक्र में सम्मिलित किया जाता है। और यह प्राकृतिक अथवा भू रासायनिक चक्र बड़े ही संतुलित ढंग से कार्य भी करते हैं, जिससे जैव मंडल में स्थिरता आती है और पृथ्वी पर जीवन चक्र प्रक्रिया बनती है। जीवन इन्हीं के कारणों से संभव होती है। अगर हम इनसे बाधा पहुंचाते हैं तो इसके बहुत से नकारात्मक परिणाम होंगे, अंततः जैव मंडल को प्रभावित करेंगे। आइए इनमें से कुछ चक्र के संक्षेप में चर्चा हम यहाँ पर करें और जानने की कोशिश करें कि ये हमारे प्रकृति में क्या महत्व रखते हैं। पहला चक्र जो हमारे समक्ष आता है अत्यंत महत्वपूर्ण है जल चक्र। देखिए जल चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल का यह चक्र जो है वायु, स्थल और समुद्री जीवित पौधे प्राणियों के लिए मध्य आदान प्रदान में मदद करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। जल चक्र सौर ऊर्जा से चलता है और महासागरों से भारी मात्रा में जल का जो है वशीकरण करता है। बादलों का निर्माण और वर्षा हमें स्वच्छ जल की आपूर्ति व भंडार भी प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें हिम रूप में बदल जाता है, यानी शून्य से कम तापमान पर जो है वर्षा की बूंदें हिम के रूप में बदल जाता है और तेज वायु चलने पर ये ओले का रूप धारण कर लेता है। जल का वर्षा हिम और ओले के रूप में स्थल और जलखंडों पर जो है वर्षण होती है। धरातल में वर्षा जल मृदा को रिस जाती है और वहाँ धरातल जल के रूप में भर जाता है। प्राकृतिक जल सतह और जल सतह धरातल के नीचे स्थित होता है और जल सतह जो है मूलाधार, मृतिका और शैल सतह का जो है समर्थित भी करता है। धरातल जल स्थिर नहीं रहता है बल्कि विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहता है। कोशिका कार्य द्वारा यह ऊपर आता है और धरातल मृदा में पहुंच जाता है, जहां इसे पौधों की जड़ें द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है जल चक्र के अंतर्गत। अगला जो हमारा है नाइट्रोजन चक्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन और इसके यौगिक जो है जैव मंडल में जीवों की प्रक्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन का लगातार आदान प्रदान होता ही रहता है। अपनी अपचाई प्रक्रिया में पौधे और पशुओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन नाइट्रोजन को जो है जैविक यौगिक होते हैं। और मिट्टी में नाइट्रोजनी जैविक अवशेष का अधिकांश भार मृत एवं अपक्षीय पौधे और पशुओं के जो है मल मूत्र से उत्पन्न होती है। कहते हैं मिट्टी से इस जैविक अवशेषों का जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ये जीव जो होते हैं डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा मृदा के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तोड़ देती है, यानी डिनाइट्रीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, जबकि अन्य जैव नाइट्रोजन की घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक में बदल के रख देता है। तो नाइट्रोजन चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, जहाँ पर जो है ये पौधों के लिए जो है एक एनर्जी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्बन चक्र। देखिए कार्बन चक्र का भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कार्बन चक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक चक्र है। वायुमंडल में कार्बन का एक छोटा सा भंडार है और जलमंडल इसका प्रमुख भंडार है, जहां वायुमंडल से लगभग 50 गुना अधिक मात्रा में कार्बन है। इसका प्रमुख समुद्र की तली पर जो है बाइकार्बोनेट खनिज के रूप में भंडार है और यह वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित भी करती है।
और यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल, जैव मंडल और महासागरों के मध्य क्रियाशीलता रहता है। तो देखा जाए तो कार्बन चक्र का यहाँ पर अपना एक विशेष महत्व है। कहते हैं ये तीनों चक्र जो है कहते हैं पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये तीनों ही काफ़ी महत्व के साथ अपना स्थान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला जो टॉपिक होगा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जहां हम पारित तंत्र के प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पारित तंत्र के प्रकार क्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके जो बच्चे नए इस बोर्ड में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे उनका सिलेबस पूरा हो जाए। कहते हैं अच्छे काम के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपका जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8 से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। हर एक वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये तभी होगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लोगे, और तब जाके आपको वीडियो का जो है हर एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो।